Okay, question number 12. In the figure, OACB is a quadrant of a circle. So either already it's a quadrant here, this one. It's a quadrant of a circle with center at O and radius 3.5. So radius is 3.5. That means this distance is 3.5. This distance is 3.5 centimeter. If OD is equal to 2, OD is equal to 2, matlab this length is 2. If OD is equal to 2, find the area of quadrant OACB. OACB का full quadrant का area निकालना. Full quadrant का area मतलब circle का area का half, 1/4, है ना? So that is, और quadrant का area निकालने के, it's a sector, isn't it? ये एक तो वैसे कर सकते हैं, it is 1/4 of पाई आर स्क्वायर, क्योंकि क्वाड्रेंट मतलब सर्कल का 1/4 है. सो दैट इज वाई हियर आपको मिला 1/4 ऑफ पाई रेडियस. रेडियस इज 3.5, 3.5 का स्क्वायर, क्योंकि सेंट्रल एंगल 90 बाई सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे तो सेंट्रल एंगल बाई टोटल एंगल 90 डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर. So 1/4 into pi 3.5 the whole square. So I have 1/4 into 22 upon 7 into, so 3.5 into 3.5, that is what 77.8. Then हमें अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल अभी, सो क्वाड्रेंट का एरिया मिल गया, सो फर्स्ट पार्ट इज ओवर. अभी सेकंड पार्ट शेडर रीजन. शेडर रीजन का एरिया चाहिए तो पूरा क्वाड्रेंट का एरिया से, नहीं तो सेक्टर का एरिया से ट्रायंगल का एरिया कम कर देना. सो दिस इज ऑल्सो, दिस इज, that is also radius, that is 3.5. So that is half into base into height. So half into base is 3.5, height is 2. So 2 cut ho jayega 3.5. So that is area of that small triangle. So then you just subtract it from the 77/8 minus 3.5. This will give you the area of the shaded portion. Got it? Now next question. In the figure, OABC is, OABC, you can see that a square. OABC is a square. Here you can see that OABC here, OA, it's a square. So it's a square inscribed in a quadrant. क्वाड्रेंट के अंदर इंस्क्राइब किया, मीन्स उसका चारों वर्टेक्स क्वाड्रेंट के अंदर ही आ रहे, जैसे क्वाड्रेंट में ही आ रहे, जिससे यू कैन सी दैट इट इज इनसाइड. OA is equal to 20. OA मतलब it is 20, that means this side is 20. So it's a square है तो this is also 20. This is also 20. Here is also 20. Find the area of the shaded region. So of course area of the shaded region चाहिए तो you have to subtract the area of the square from the area of the quadrant. So area of the square तो मिलेगा, area of the square is side square इधर, side square, so 20 into 20 400. तो area of the square मिल गया. शेडर रीजन का एरिया चाहिए तो एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट से एरिया ऑफ द स्क्वायर कम कर देना. अभी क्वाड्रेंट का एरिया चाहिए तो आपको पता है इट इज 1/4 ऑफ, क्योंकि क्वाड्रेंट मतलब सर्कल का 1/4 है, 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर, नहीं तो 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर. सो बट आपको रेडियस चाहिए. सो रेडियस मिलने के लिए यू हैव टू, यू कैन सी दैट you can join this OD. So you can see this is a right triangle. So here is a right triangle. So like this. So base square plus altitude square, 20 square plus 20 square. That is 400 plus 400, 800. So that is square root. That is 800 ka square root, which is 800 matlab 400 into 2. So 400 into 2 ka square root. 400 ka square root 20. Root 2 ka, that is root 2. So you got the radius. That means you got the radius as 20 root 2. So 1/4 into pi r square, 1/4 into pi 3.14 यूज करने के लिए बोला, r 20 रूट 2 इंटू 20 रूट. सो आपको मिल गया 628. जब मल्टीप्लाई करेगा दैट आंसर मिलेगा. सो दैट इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट. सो क्वाड्रेंट का एरिया से, सो 628 से स्क्वायर का एरिया कम कर दिया 400, तो रिमेनिंग इज 228. दैट इज द एरिया ऑफ दैट शेडेड पोर्शन.
Got it? Next question. See, AB and CD represents the arc of two concentric circles. So these are two concentric circles. You can see उसका part है. दो circle का concentric circle का part है. This one arc is here. AB, that is the arc of the big circle. Then another arc of the small circle. This. अभी आपको क्या चाहिए? You have to find the area of the shaded region. So shaded region के area चाहिए तो बड़ा sector का area. Big sector का area of big sector minus area of small sector. Area of big sector minus area of small sector. So big sector का area चाहिए तो उसका radius चाहिए. इधर तो देखो radius एंगल बोला है 30 डिग्री, तो दोनों का 30 डिग्री है. देन रेडियस फर्स्ट का 27, 21 सेकंड का 7. सो डायरेक्ट क्वेश्चन. सो थीटा बाई 360 इंटू पाई इंटू फर्स्ट का रेडियस 21, सो पाई आर स्क्वायर 21 स्क्वायर. अगेन थीटा बाई 360, 30 बाई 360 इंटू पाई इंटू सेकंड का रेडियस का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर. फॉर्मूला इज थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. सो फर्स्ट सेक्टर का बड़ा सेक्टर का एरिया माइनस छोटा सेक्टर का एरिया. So that will give you the answer 308 divided by 3 centimeter square. Got it? आया समझ में? सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है ना? Yes sir. Yes sir. Okay. In the figure, ABC is a quadrant of a circle of radius 14 centimeter. So you can see ABC. ABC is here. You can see it's not the triangle ABC. Quadrant bola hai. So this is that ABC. This what? This is the, so this complete thing. This is nothing but it is the quadrant of a circle of radius 14. Radius 14 मतलब ये वाला distance ये होगा 14 centimeter. Now, and a semicircle is drawn with BC as diameter. So the ABC जो triangle था इधर, नहीं ये तो first circle का एक chord था BC, इधर BC you can see. उस BC को डायमीटर पकड़ के एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया. उस BC को डायमीटर पकड़ के एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया था इधर. तो उसका जो देन ये जो हमारा जो पहले क्वाड्रेंट के बाहर जो आ रहे एरिया, इतना एरिया हमें चाहिए. वी नीड दैट मच एरिया. Find the area of the shaded region. Okay, just tell me how to do this. So how to find the area? Just tell me how can we find the area? सर आर्क के एरिया से ट्रायंगल का एरिया माइनस करने के बाद वो डी सी आर्क मिल जाएगा, और फिर BC से डायमीटर पकड़ के वो होल सेमी सर्कल का एरिया निकाल के उसमें से वो BDC आर्क. ओके, ये तो ऐसे करेंगे. ये सर्कल का एरिया, ये एरिया प्लस सेमी सर्कल ऐसे ऐड करेंगे. सो क्या हो गया? पूरा एरिया मिल जाएगा ना? होल डायग्राम का एरिया. होल डायग्राम का एरिया मिल जाएगा. आई विल जस्ट रिपीट दैट. हम क्या करेंगे? और सेक्टर का माइनस करने का उसमें. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि हमें जो प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल.
सो क्या हो गया, पूरा डायग्राम का हो गया. सो Yes, देन sir. उसमें से क्या कर देना, द एरिया ऑफ दैट क्वाड्रेंट, नहीं ये तो दैट सेक्टर. Sector. आप सेक्टर बोल सकते हैं, नहीं तो इसको क्वाड्रेंट, नहीं तो क्वाड्रेंट बोलते हैं, कोई इशू नहीं, जो भी. सो सो दैट इज वन केस. डिफरेंट यू कैन से सर सेमी सर्कल का एरिया से इतना सेगमेंट का एरिया कम कर दो, दैट्स ओके करेक्ट. बट वो सेगमेंट का एरिया कैसे मिलेगा, सेक्टर का एरिया से ट्रायंगल का एरिया कम कर देना. Triangle area minus. So it is up to you, like you can do in many. So if one student says, sir, I will find the semi area of this semicircle, the what, this one BC, that one big semicircle, then I will subtract the area of this segment. So correct. But for getting the area of that segment, आपको क्या करना पड़ेगा, सेक्टर का एरिया से ये ट्रायंगल का एरिया कम करना पड़ेगा. So it is up to you, you can do it in any way. So what I'm saying is, okay, here I'm going to add this area of this see this triangle. So triangle मतलब इतना हो गया. Then I'm going to add the area of that semicircle. So semicircle मतलब इतना आएगा. So ये क्या हो गया, पूरा आ गया एरिया. बट उसमें से मुझे नहीं चाहिए था कितना का, जैसे ये वाला एरिया, जैसे ये इतना वाला एरिया. सो उतना वाला एरिया कम करेंगे. गॉट इट. सो दैट इज व्हाई एरिया ऑफ ट्रायंगल उसके साथ एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऐड किया तो पूरा फिगर का एरिया मिल जाएगा. उसमें से क्वाड्रेंट नहीं तो सेक्टर का एरिया कम करेंगे. ओके अभी सो एरिया ऑफ ट्रायंगल. सो ट्रायंगल तो राइट ट्रायंगल बहुत आसान है, हाफ बी एच है ना. एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो इधर, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल किधर की, एक मिनट. एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो इधर, एरिया ऑफ ट्रायंगल half into base into height. So half into base is also 14, height is also 14. So half into 14 into 14. So मिल गया 98. ट्रायंगल का तो मिल गया. अभी सेमी सर्कल का चाहिए, सेमी सर्कल का चाहिए तो हमें रेडियस चाहिए. वी नीड द रेडियस. तो रेडियस तो हमारे पास नहीं है, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड द डायमीटर इधर BC. सो 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर. तो उसमें से आपको BC का मिल गया 196 प्लस 196 दैट इज 392. स्क्वायर रूट ऑफ 392 मतलब इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 196 इंटू 2. 196 का स्क्वायर रूट 14, 14 रूट 2, दैट इज वाई BC इज 14 रूट 2. BC 14 रूट 2 मतलब उसका हाफ हो जाएगा 14 रूट 2 बाई 7, दैट इज 7 रूट 2. 14 रूट 2 बाई 2 दैट इज 7 रूट, दैट इज अ रेडियस. तो आप सेमी सर्कल का एरिया हाफ पाई आर स्क्वायर. सो हाफ इंटू पाई इंटू 7 रूट 2 का स्क्वायर. सो आपको मिल गया 154. सो ट्रायंगल चाहिए था, सेमी सर्कल चाहिए था. अभी सेक्टर का एरिया, सेक्टर का एरिया मतलब इट इज 90, इज 1/4 ऑफ दैट सर्कल, हमारा ओरिजिनल सर्कल. सो दैट इज 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर. ओरिजिनल सर्कल का रेडियस था 14, सो उसमें से आपको मिला 154. सो लास्ट स्टेप, ट्रायंगल का एरिया सो 98 प्लस सेमी सर्कल का एरिया 154 minus quadrant का area 154. So the remaining is 98. Okay. Any doubt in this question? No, sir. Okay. So we'll move to the next question. That is, I think, the last question. So this is the last question. Calculate the area of the shaded region. In figure, common between two quadrants of circles of radius 8 centimeter each. Calculate the area of the designed region. जो डिसाइन किया ना, ये वाला डिसाइन है पूरा.
दैट मीन्स इधर पूरा इसके बीच में गैप है, सो बट इट इज अ डिजाइन, इट इज नॉट लाइक यू हैव टू फाइंड दैट एरिया ऑल्सो, ऐसा नहीं है, इट इज अ डिजाइन, so you have to find the area of that design. Correct? Did you understand the question? You want to Yes, sir. find the area of the design. So common between two quadrants of circles of radius 8 centimeter each. So so आपने कहीं देखा है क्या सर्कल? This is the quadrant. I will show you. You can see this is 8 centimeter, right? This 8 centimeter, this is 8 centimeter, right? So इसका जो Yes, sir. quadrant है, you can see that this, देखो, this is the quadrant. Okay, that is a quadrant. And similarly, right side Yes, sir. maybe I say, here you can see this is this radius which is 8 centimeter. This is 8 centimeter. You can see. So उनका जो quadrant है here. See that? So the idea is clear now. Two quadrants. So इन दोनों के quadrant के बीच में आ रही है shaded वाला, isn't it? So we have to find the area of that. Correct? So कैसे मिलेंगे? सर होल क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो एक सेगमेंट का फॉर मिलेगा। एग्जांपल भरेंगे तो फर्स्ट सर्कल में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूरा क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के, पूरा क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के ट्रायंगल का एरिया कम करेंगे तो वी विल गेट दिस रेड शेडेड पोर्शन, राइट? यस सर, सेगमेंट का एएफसी। Yes. Yeah, this should be clear to you. Like in the first quadrant, the red one, उसमें से वो सेक्टर मतलब इट इज एक्चुअली हाफ ऑफ द सर्कल, 1/4 ऑफ द सर्कल, उसमें से व्हाट आई विल डू, आई विल सबट्रैक्ट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ADC, so I will get this shaded portion. Similarly I can find the other areas, but both are same because both are actually, दोनों सर्कल देखो देखेंगे तो दोनों सर्कल का रेडियस सेम है, 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया भी सेम होगा, so इसलिए एक का एरिया मिलने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करो, दैट इज इनफ। तो हम पहले DAFC वो सेक्टर का एरिया निकालेंगे। सेक्टर का एरिया मतलब इट इज 1/4, नहीं तो 90/360, 1/4 ऑफ पाई इंटू आर स्क्वायर, आर इज इक्वल टू 8, तो आपको मिला 352/7। अभी ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 8 इंटू 8, दैट इज 32, सो 352/7 से 32 कम किया, आपको मिला 128/7, दैट मच centimeter square is the area of this shaded portion. The other shaded portion is also having the same area, so 2 से multiply कर देना, so therefore shaded region is equal to area of two segments, which is 2 into 128/7, which is 256 divided by 7 square centimeter. Got it? So that's all. Yes, sir. From this chapter actually. So even though we said there is one topic is avoided, which is central angle is 120 degree, उसका एक ही क्वेश्चन आया है, बाकी सभी क्वेश्चंस तो उसमें से कोई central angle 120 आया ही नहीं, ठीक है? So that means almost all the topics are, only one question was not there, but that also we discussed. Okay, so that's all. So our syllabus is completed now.